Namah Shivaya. Namah Shivaya. I got connected to Guruji in 2022. But before I start my satsang, I want to share something which happened this evening. I had shared in my home satsang that, Seema auntie approached me for sharing satsang, and I said no at that time, saying that, I'm hesitant not to talk in public. Today, when I came from work, I was like, we still have time for ashram. So I was just browsing through my phone, and a message came saying that I was thinking about something which I'm going through at work, and the message came across as like कि तू चिंता ना कर, तू सिर्फ मेरा शुक्राना करती रह, सब ठीक होगा. और मैंने फटाक से फ़ोन बंद कर दिया ये सोच के कि गुरुजी प्लीज़ अभी नहीं सत्संग मैंने अभी शेयर किया था बहुत हिम्मत करके. But as soon as I came, Seema auntie came to me and she's like कि आज ना आपको सत्संग शेयर करना है. So I was like गुरुजी आपसे तो escape में हो ही नहीं सकती हूँ. You will make sure that my hesitation goes away. So the biggest satsang I would say is my husband getting connected to Guruji, because I believe when आपका परिवार अगर एक संग यहाँ आता है ना तो it gets easier for you. नहीं तो आप यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन your mind is there only कि like घर पे क्या हो रहा है या like something or the other you keep distracted. So when I started coming here, it was just me and my brother who was coming. My husband did never even show any interest to like come in here. At that time, I gave him a benefit of doubt because he wasn't working. He lost his job. So almost for like 7 months, he didn't had a job. And I was coming to Guruji. I knew that his blessing is going to impact him. But and गुरुजी से मैं सिर्फ यही बोलती थी जब लंगर प्रसाद करती थी रोती रहती थी तो एक यही प्रार्थना थी कि गुरुजी के जस्ट डू समथिंग, या तो वो यहाँ आ जाएं या फिर किसी तरीके से हमारी ये जो मुश्किल है अभी गुजर जाए. बिकॉज I had asked my husband at that time, like, how much more can we survive without, like, you having a job right now? And उन्होंने कहा था कि डिम्पल सिर्फ 1 महीने की मॉर्गेज बाकी है, नहीं तो हमें बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा. And it was shocking for me because, as I said, it's like बोलते ना हम typical Indian mentality हो जाती है कि हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा. तो वो टाइम जब मैं आई गुरुजी के पास मैं बहुत रोई थी और मैंने गुरुजी से यही कहा था, मतलब गुरुजी शायद मेरी सेवा में कोई कमी है, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे वो दिन मत दिखाइएगा आप. एंड 2 ही हफ्ते बाकी थे वो महीना ख़त्म होने में. एंड miracle happened. My husband from the same company, he got 2 job offers. Of course, one was the one which I wanted him to take, and the other one was which Guruji wanted him to take. So गुरुजी के संग थोड़ा मेरा डिबेट उस समय चालू हो गया था, गुरुजी ने ये दिला दो ये मत दिलाओ and all. But he got the one which I didn't like. And of course I came and I did शुक्राना to Guruji, but after that I was like गुरुजी आपने दिला तो दिया है लेकिन I think that is more secure job for him because वो finance है and he is from finance, so it will be better, or traveling nahi hoegi because this one had more traveling. So all that thing was going on between me and Guruji. But he knew better. 3 or 4 months later when I spoke to my husband, I just asking in general, do you think वो finance department में job होगा? And he said, you know what Dimple, वो जो position थी उस time पे ना उन्होंने वो withdraw कर लिया and there is no longer that position. So I came that Sunday and I said, Guruji, I'm sorry I doubted you. You did what was best for me. Same thing happened last year. We went to India and my husband is talking to somebody and he's saying, he comes and tell me that Dimple, when I go back, I'll start working with him for 1 day as a consultant. And I was getting so upset and I told Guruji, Guruji, ek to already traveling ka job hai. Kids are growing, classes, mera like I was debating with him, like, kyun aap ye meko aur challenging de rahe ho? But again, he knows it. We came back, it was a Labor Day weekend, we came back from India. That Friday, the company asked my husband that, you know what, you would have to let go 25 people. And he said, I'm not going to do that. So in the evening, they let him go. But the difference over here was that because Guruji was with me, he had a job already. Because the people where he wanted to do as a 1 day as a consultant, they were actually looking to hire him full time. So it was like, कि उन्हें पता है और, वो अपने आप ही कर देते हैं, राह बना देते हैं उसमें. इट्स जस्ट दैट हमें पता नहीं होता, उस टाइम पे हम थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं उनकी तरफ. Like recently with me from last 3 months, I'm going through a lot in my work.
पॉलिटिक्स तो हर काम में हर जगह होती है, एंड आई हैड नेवर फेस्ड इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली आई एम गोइंग थ्रू दैट पॉलिटिक्स एट वर्क. तो कुछ बहुत हद तक बढ़ गई थी, एंड इट वेंट टू दैट कि मैनेजमेंट के संग मीटिंग एंड एवरीथिंग विद. आई वर्क फॉर अ प्राइवेट कॉलेज एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल एड. सो ही सेड उसमें ऐसा कुछ हुआ, इवन दो आफ्टर शोइंग ऑल द प्रूफ्स, the person who did the mistake didn't got this thing, and I was told that you being a leader, you need to change your perspective, help him out and everything. So while coming back from work, I was crying like a baby, and I was just telling Guruji, मतलब गुरुजी इससे तो अच्छा है ना बेकार बन के ही रहो, कम से कम बुरा नहीं लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो और फिर भी लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं. मतलब प्रूफ दिखाया, फिर लाइक आई वॉज डेविस्टेटेड. और जैसे ही मैंने ड्राइववे में अपनी गाड़ी पार्क की, and I picked up my phone. I don't know what happened. मैं अपने husband को phone लगा रही थी, but that message popped up, and I was shocked. It was so clear to what I was fighting with Guruji. It said that तू मुझसे सवाल करती है कि तूने ऐसा क्या बुरा किया है जो तेरे साथ ये हो रहा है और उसके साथ नहीं हो रहा है. बोले पहली बात, तू दूसरों से अपना कंपेयर करना बंद कर दे, क्योंकि तू गुरु के शरण में आई हुई है. दूसरा, तुझे नहीं पता कि उस इंसान के शायद ये इस जन्म में बुरा कर्म कर रहा हो, लेकिन उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो सकते हैं, इसलिए उसकी गलती शायद दिखाई नहीं दे रही है तुझे. बट तू अब मेरी शरण में आ चुकी है, तू अपना दिल खराब मत कर, तू सिर्फ सिमरन कर और मेरा शुक्राना कर, बाकी मैं देख लूँगा. एंड एट दैट टाइम बिकॉज आई वॉज सो अपसेट विद गुरुजी, मैंने वो मैसेज को इग्नोर किया. मैंने हस्बैंड को फॉरवर्ड भी कर दिया कि देखो ये आया, बट उस समय पे मुझे ये था कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ही इज़ जस्ट हमारी सोच होती है, जब अच्छा होता है तभी करते हैं. आई वॉज फाइटिंग विद हिम, बट फॉर 3 days कंटिन्यूसली वो मैसेज ना ही मेरे फ़ोन पे. इनफैक्ट मैंने ऑफिस में जो अपना कंप्यूटर पे यूट्यूब ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ लगाने के लिए किया ना, कंटिन्यूस वही मैसेज मुझे हर जगह पे आ रहा था. और वही 3 दिन मेरा रेजिग्नेशन ईमेल मेरे कंप्यूटर पे था, बिकॉज आई वांटेड टू रिज़ाइन एंड जस्ट गो. व्हेन 3rd day भी जब वो कंटिन्यूस हुआ ना, बिकॉज मेरा ये था कि वो यूट्यूब पे देखा है तो वो रिपीट हो रहा है. दैट्स मेंटालिटी आई हैड, एंड आई फॉरगॉट कि गुरुजी के दरबार में ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स हिम गिविंग यू अ मैसेज एंड यू हैव टू रियलाइज इट. सो जब 3rd day वो हुआ, एंड आई स्टॉप्ड इट, एंड देन आई जस्ट टुक एन ऑफ एंड आई वेंट बैक नेक्स्ट डे. वो दिन है और आज का दिन है, वो मैसेज मुझे दोबारा कभी नहीं आया है. लास्ट 2 weeks, लाइक आई वुड से 3 weeks बैक, मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया था, मतलब कुछ तो ऐसा हो कि इस इंसान की गलती सबके सामने आए तो सही, कम से कम कि मैं क्या करूं. एंड यू नो व्हाट, अगेन कभी कभी डर भी लगता है इनसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जवाब भी दे देते हैं. कभी कभार इनका तुरंत मुझे जवाब आता है कि तू किसी का बुरा नहीं करना और तेरा बुरा मैं होने नहीं दूंगा. एट दैट मिनट आई सेड, यू नो व्हाट डिम्पल, जस्ट गिव इट अप. गुरुजी जब तेरे साथ है तो तू क्यों सोच रही है, जस्ट लेट इट गो, बी द वे इट इज़. लास्टली रिसेंटली जब सब बोलते हैं कि हमें बटरफ्लाई दिखी, हमें ओम दिखा, तो कभी कभी दिल में आ जाता है, इवन दो यू नो कि इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ साइन कि नहीं गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, बट स्टिल इट कम्स टू योर माइंड. I remember 18th of May, I was having a seva, so I was making a roti prasad at that time, and जब मैं start करी थी तो मैंने गुरुजी को ये बोला, मैं गुरुजी, I'm very happy today that I'm going to spend my birthday with you, but you know what, as a birthday gift क्या आप मुझे आज ओम दिखा सकते हैं? I know you are with me, but मुझे देखना है वो कैसा लगता है रोज़ के ऊपर. तो स्टार्टिंग के जो मैंने 7-8 ऐसे रोटियां जब बनाई ना, बड़े ध्यान से देख के बना रही थी. एंड देन आई सेड, डिम्पल छोड़ यार, तू गुरुजी इतना तू करेगी तो गुरुजी तुझे और परेशान करेंगे, जस्ट लेट इट गो. एंड द लास्ट वन विच आई मेड, it had that on it. I'm like, thank you Guruji, that is like the best birthday gift you have given to me. Not that I doubted you, but just to कभी कभी लगता है कि शायद उसी से आपका प्यार दिखता हो करके. बट आई नो यू आर ऑलवेज विद मी. आपने मुझे छोटी सी छोटी चीज़ में आप मेरे को जवाब देते हैं. सो बी विद मी ऑलवेज. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.